कि मैं नया सामान लूँ, नई टेबल कुर्सियाँ लूँ, नया टीवी लूँ, सब कुछ लूँ, पुराने को क्या करेंगे? वो तो आपके घर की बदसूरती है ना, वो आपके घर को ख़राब कर रहा है ना। कोई गेस्ट आएंगे तो कहेंगे यार नए सोफ़े तो पड़े हुए हैं, पुराने भी पड़े हुए हैं, वो आपने कोने खांचे में रख दिए, कहीं बेच नहीं रहे हो आप उसको, स्क्रैप नहीं कर रहे हो। तो यूँ समझ लें कि आपकी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो नरेंद्र मोदी जी से रिलेट करती है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हॉनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड नेशनल ऑटोमोबाइल्स स्क्रैपेज। आगे तो मुझे प्रोजेक्ट होगा मे बी, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। Older vehicles pose a risk to road safety, have higher consumption of fuel and pollute the environment. In line with the Sustainable Economic Development Vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Government of India announced the Voluntary Vehicle Fleet Modernization Program (VVMP), also known as Vehicle Scrapping Policy. Vehicle Scrapping Policy presents a win-win situation for all stakeholders, be it vehicle owners, pedestrians, industries or the government. Scrapping of vehicles will make our roads safer for passengers and pedestrians. Newer vehicles have better fuel efficiency, lower maintenance costs and lower or no burden of fitness testing cost and green taxes, thereby lowering cost of ownership for the vehicle owners. On depositing the vehicle for scrapping, the vehicle owners will get a certificate of deposit which will be tradable. It can be used to avail multiple benefits such as registration fee waiver, road tax concession and auto OEM discounts on purchase of new vehicles. For successful implementation of the policy, an investment of rupees 10,000 crores is required to set up 450 to 500 automated testing stations (ATS) and 60 to 70 registered vehicle scrapping facilities (RVSF) across the country. These present very attractive opportunities for investors. A single window clearance portal is being developed where the registration applications for ATSs and RVSFs will be catered through a single portal within 60 days. The policy will formalize the currently informal scrapping sector and promote safe and environment-friendly scrapping of vehicles. ओके। This will also lead to an increase in availability of low-cost raw materials for automotive, steel and electronics industry. These benefits, along with increased automobile sales, are expected to create 35,000 new job opportunities. The vehicle scrapping policy targets voluntary scrapping for more than 1 crore vehicles, which are either unfit or have not applied for re-registration. A vehicle will be declared as end of life or unfit if it fails the automated fitness test, the allowed retest and re-inspection test ordered by appellate authority. Mandatory automated fitness testing for heavy commercial vehicles (HCV) is to be effective from 1st April 2023. For all other classes of commercial vehicles as well as private vehicles, fitness testing through ATS is proposed to be mandated in phases from 1st June 2024 once adequate number of automated testing stations are set up. VVMP is a transformative step to introduce a regime of fitter automobiles on Indian roads. As policymakers, investors, vehicle owners and auto and steel manufacturers, it is time to make a contribution for successful implementation of the policy. तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो सोच है ना, ये हमारी सोच से 4 कदम आगे जा रहे हैं। पूछो कैसे? गाड़ियाँ आ रही हैं, मेट्रोज आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, मतलब नई नई चीज़ें, पुरानी कहाँ जाएंगी? वही तो। और पुरानी चीज़ों का नुकसान क्या है आपको पता है? सबसे पहले तो पॉल्यूशन। आपके वो जो गाड़ी चलती है उसका इंजन ऐसे हो जाते हैं कि वो धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, ख़राब हो जाते हैं एज अ न्यू कार। ठीक है ना, जाहिर सी बात है। और आजकल वैसे भी ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो ये मसला है। गाड़ियों को अगर मैं कंपेयर करूँ नई गाड़ियों से, तो एज कंपेयर टू न्यू कार, तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं देती नई गाड़ियाँ। पॉल्यूशन हर गाड़ी में
हाँ हाँ तकरीबन, क्योंकि उनमें इस तरह से सिस्टम लगाए गए हैं कि वो पॉल्यूशन नहीं हो। और दूसरी बात है कि अब तो इलेक्ट्रिक की तरफ लोग जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब गाड़ियाँ तो हैं लोगों के पास पुरानी 30-30 40-40 पुराने वो ट्रक हैं बड़े बड़े लोडिंग वाले, वो भी शहर में चल रहे हैं, एक बंदे की मलकियत है। अब आप उसको कैसे रोक सकते हो कि आप नहीं चलाओ, हमारा शहर का ख़राब हो रहा है और आपकी गाड़ी रिस्की है। तो इनका ये मकसद है कि उनको बहुत ही कम कॉस्ट पर फिटनेस टेस्ट किए जाएं उनकी गाड़ियों के, और अगर वो स्क्रैप होती हैं तो उनको अच्छी अमाउंट दी जाए जिससे वो, हाँ, यानी कि यूँ समझ लें कि आगे तरक्की तो हो रही है, पीछे का कचरा भी साफ़ हो रहा है। इसको थोड़ा सा इस चीज़ को समझें, बात को समझें कि आगे तो आप नई नई चीज़ें मुल्क में ला रहे हैं, लेकिन आप जमा करते जा रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पिछली जो चीज़ें हैं जो नुकसानदाह है, आप उससे वो एक्सीडेंट्स के खतरे हैं, तो उस चीज़ का भी इन्होंने सोचा। मैं कहता हूँ सलाम है, यकीन करें उनकी जो सोच है, उनका जो एक अपने मुल्क को साफ रखना या तरक्की की तरफ ले जाने का कमाल है। तो तरक्की आवाम की कितनी फिक्र है। बिल्कुल, एक इसको यूँ समझ लें आप, थोड़ी सी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपके पास पैसे आ जाते हैं और आपके घर में पुराना सामान तो पड़ा हुआ है, और आप सोचते हैं कि मैं नया सामान लूँ, नई टेबल कुर्सियाँ लूँ, नया टीवी लूँ, सब कुछ लूँ, पुराने को क्या करेंगे? वो तो आपके घर की बदसूरती है ना, वो आपके घर को ख़राब कर रहा है ना। कोई गेस्ट आएंगे तो कहेंगे यार नए सोफ़े तो पड़े हुए हैं, पुराने भी पड़े हुए हैं, वो आपने कोने खांचे में रख दिए, कहीं बेच नहीं रहे हो आप, उसको स्क्रैप नहीं कर रहे हो। तो यूँ समझ लें कि आपकी तरक्की जो हो रही है, तरक्की के पीछे पीछे आपके घर की सफाई भी हो रही है। सिंपल है मायनों में, कमाल कमाल कमाल, बहुत ही अच्छा। उसके फिर तरीक़ेकार रखे गए हैं कि लोगों को लॉस ना हो, लोगों को परेशानी का ख्याल रखा गया है। कमाल यार, आप क्या कहेंगी? मैं भी ये कहूँगी जो आपने मुझे समझाया। वैसे तो मुझे पहले स्क्रैपिंग का ये तो लग रहा था कि जो ओल्ड कार्स वगैरह हैं, हाँ, उनको इस तरीके से स्क्रैप किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये जो आप बता रहे हैं ना कि लो टैक्सेस रखे गए, लो मेंटेनेंस, ताकि उन लोगों को, और फिर उनको उसका बेनिफिट दें। अगर गाड़ी, और अगर गाड़ी बिल्कुल ही ख़त्म है तो फिर तो जाहिर सी बात है स्क्रैप में जाएगी लाजमी, और उसको भी उसका कुछ ना कुछ मिले बंदे को, ताकि फिर वो नई गाड़ी ले या कुछ ना कुछ, मतलब लेकिन मतलब यही है ना कि आपके कंट्री साफ रहे, आपकी जो तरक्की है वो दिखे भी तो सही ना, आपकी तरक्की वो हो भी रहे और आपकी आवाम को सेव कर रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या है? जान से बढ़कर तो कुछ, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। फिर पोल्यूशन है, उसको आप कम कर रहे हो। मैं बस वही वाली बात है कि क्या सोच है, क्या ही सोच है, आला सोच। अच्छा, आपके माइंड में आई थी ये बात? नहीं ना, जब तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं पता नहीं 4 कदम आगे हैं, यकीन करें बस। नहीं 10 कदम आगे। नहीं 4 कदम, पीछे मैं भाग रहा हूँ आस्ते से। आपके जहन में आप भागते रहेंगे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपसे। अच्छा, आपके जहन में क्या है, ऐसी कुछ आई थी बात? क्या इस तरह का कुछ? नहीं, स्क्रैपिंग का तो मुझे पता था, ये तो होता है हर जगह, लेकिन कोई, मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी गाड़ी का ऑनर पुरानी गाड़ी को लेके कमा रहा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा मेरी गाड़ी फिटनेस में आके फंस जाए, बिल्कुल, मेरी गाड़ी को नुकसान हो जाए, मेरी गाड़ी का ख़त्म ना हो जाए, मेरी गाड़ी तो ऐसी है, रिस्की है, मुझे लग रहा है, और मेरी गाड़ी ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट बंद ही कर दे। लेकिन उसका भी उन्होंने तरीक़ेकार रखा। ये कमाल की बात, ये बड़ी बात है, बिल्कुल, ये बहुत ही कमाल की बात है, मैं कहता हूँ। तो दोस्तों, जिस शख्स ने हमें ये वीडियो सजेस्ट की, हमें एक मतलब है कि एक क्या कहते हैं उसे, एजुकेट किया, हमें कुछ चीज़ें पता चली, इसमें हमारी नॉलेज में आई। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी हमारे लिए, सीरियसली ऐसे ही है वाकई, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।